दो हीरोइन है, ये कहाँ से लेके आया आप? ये यहीं कहीं थी, मुझे थोड़ी देर से मिली है. ऐसा ऐसा एक का नाम है जेमा एटकिंसन. ओके. And I was. Let me tell you briefly about how the film happened and all that. A little, very briefly for everyone to know. Going from the teaser and जो teaser की बात करें अनुराग, जो आप लोग का question कि why everything going in reverse. So going by that, Fever was conceived when I was very young, about 7-8 years old, and when my father spoke about Ian Fleming's and Alfred Hitchcock. And that's what Fever is all about, and it's all about childhood fantasies coming true of how we are fascinated with James Bond and Hitchcockian suspense and stuff like that. And Bond, I think, is incomplete without hot women. It kind of the romanticizing of how do you are involved with hot babes. And Gemma is when I kind of looked at her work, and she's done a few Hollywood films and films in Europe. She embodies hotness, if I can say that, and people who have kind of seen her would agree with that. And to add to the fact that I'm a big fan of football, and she is Ronaldo's ex-girlfriend, so that is how I started knowing about her. यो, I think जलन थी आपको रोनाल्डो से. Simple क्यों नहीं बोलते यार, खत्म करो ना. Okay. Yeah. Okay, and then I think the film would have been incomplete with actually a Bond girl in the film. Is a character when a spy, for a spy, the ultimate romance is to romance a Bond girl. There cannot be a bigger romance for a spy or an assassin. And that's when I kind of started searching for somebody who can really play that and embody that. And then I found Katrina, and I wrote to her, and I sent her the script, and she was gracious enough to accept it and be a part of it. And during the making of the film, I actually I lived the life that I'm trying to portray on screen. I went to Monte Carlo, which is a quintessential Bond location. All films of Bond have Monte Carlo. So I went to Monte Carlo, and I met Katrina there. And I told her about what it is about, and she was very excited, and she came on board. So kind of the film was complete, that here is an assassin who is romancing a Bond girl. It kind of completes the genre for me. हमारे हिंदुस्तान की फिल्मों को प्रमोट करने वाले आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं. लोग चाकू छुरी तलवार लेके घूम रहे हैं, है ना, मार्केट में. लेकिन आप लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. और सबसे पहले पूछना चाहूँगा, फीवर. वेल मेरा एसोसिएशन फीवर से इस वजह से है क्योंकि मैं अपने अजय भाई को जानता हूँ एंड राजीव को जानता हूँ, एंड दे हैव बीन वेरी क्लोज एंड दे हैव फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. और जब भी ये कभी भी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ के अंदर, आई नो दैट दे पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट. और मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड, बहुत प्यार से, बहुत एफर्ट से फिल्म बनाई है. परफॉर्मेंस अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है. इट्स लिटिल डिफरेंट, पीपल विल एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म. एंड ऐसे मौके पे आई फील मोर देन हैप्पी टू कम एंड गिव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. और आई एम हैप्पी कि आप लोग इतनी तादाद में आए हैं इधर. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ वंडरफुल टू हैव यू पीपल आउट हियर, एंड वी जस्ट होप that the message of this film in terms of how good it is and entertaining it just reaches to a larger audience. So thank you very much everyone. Thank you. सोहेल. मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल तो अगर आपको प्रमोट करना है तो there is nothing better than having friends for you. And we are so glad because as Bhai said that एक हमारी जो journey है, that we've grown up as friends, and we all make films. I was very surprised that a production like this, when I was watching, have gone and shot the film in Switzerland, in Zurich, have got an international star cast. It's it's commendable that in today's time that this team can pull something like this off. I've always been a Rajiv Khandelwal fan. I saw his first film. His first film was made by Rajkumar Gupta, sorry, and Amir. And I remember seeing the film. In fact, Vikas Bahl, a friend of mine, a very dear common friend of mine, showed us the film together. And from that time, I thought he was an extremely competent actor. He's an extremely good-looking boy. And from the sincerity of my heart, I wish that
he deserves the success that he gets with Fever. It's a film that a team has put together. They've worked very hard. I've been through the journey of this film, so I know that to make this kind of film, to come out of this kind of film, and to have, and you know what surprises me, I didn't realize मैं repeat आपकी तरफ थी, but I'm so glad that how we as friends have been here, you as the media have come to support a film like this, because एक आपका सपोर्ट है और एक पराज अंकल का सपोर्ट है. अगर पराज अंकल का सपोर्ट है तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, या फिर अगर आपका सपोर्ट है यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन. मैंने इसीलिए कहा ना, तलवार कैची लेके सब खड़े हुए हैं आजकल. So I'm really glad that for a film like this, all you boys are here, girls and boys, sorry, all you guys here to support the film, because media के through ही awareness होती है. And it's, I have, you know, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन during this journey, I had gone to visit Ajay to his office. मैं ऐसे ही बैठा था and he was watching the rushes. So I started watching the film. थोड़ा बहुत मैंने देखा, फिर ऐसे थोड़ा और दिखा दे, थोड़ा बहुत मैंने और देख लिया. And I found the film very interesting. It's got a unique screenplay. It's a thriller. और हर चीज़ में अगर कोई थ्रिल होती है, जैसे कि अगर एक लव स्टोरी में एक थ्रिल होती है, आई थिंक कुछ कुछ होता है, was one of the most thrilling love stories. क्योंकि you know, first Rani dies, and then you've got 7 letters, then Kajol comes back into his life. So every film which has a thrilling moment, it can be a love story, it can be a murder mystery, it can be a social film, I think keeps the intrigue of the audience. And this film has managed to do that. So I wish them all the best, and I hope that this film reaches a vaster audience thanks to the media, and appreciate all you guys being here. Thank you. अजय जी शुरू करें, प्रोमो दिखाएं सबको. पहले बात तो अजय को बुलाते, जो मेन आदमी जिसकी वजह से हम सब यहाँ आए. अजय कम, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अजय के लिए. That's Mr. Ajay. He's the producer of the film and the man behind Fever. Ajay would like to say something. I would like all of you of my associates also, people who have supported for this movie. Mr. Manjunath, please come. Karan प्लीज ji, कम, प्लीज कम. Ravi ji. Manik. पहले ना ये अनुराग आपने बोला स्टेज पे आने के लिए, ये पहला स्टेज है जमीन से नीचे है. ओके, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. आइए प्रोमो देखते हैं. Congrats, yeah, the team is looking very nice. And जो मैंने फिल्म देखी है, it's on that mold, it's on that flavor. So best, I think that this film's got all the elements that we require for a successful commercial film. You know, I think the main person for you guys for Q&A. Come. Just come. Just get a team up so we can take this forward. Rajiv Zaveri. Mike is all yours now. Thank you so much. Thanks. Thank you. I think let me first get my hero and my heroine on the stage to kind of made it come alive, and so can Rajiv Khandelwal please come here. जोरदार तालियां होनी चाहिए. राजीव खंडेलवाल, And गौहर खान, where is Gauhar? प्लीज कम ऑन द स्टेज. जोरदार तालियों के साथ. दवे साहब कैसा लगा ओवरऑल, प्लीज. ट्रेलर आ रहा है, जैसे अरबाज एंड सोहेल ने कहा, इट्स फैंटास्टिक. और जिस तादाद में लोग आए, इट्स क्वाइट अमेजिंग. इट्स नॉट टेक्निकली अ बिग फिल्म, जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बड़े स्टार कास्ट, लेकिन ये बहुत एनकरेजिंग है दैट दीस पीपल हैव कम. ओके. राजीव गौर, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो. ये फिल्म अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग नजर आ रही है. तो राजीव, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फीवर फिल्म का नाम क्यों है यार? सबसे पहले तो ये बताओ. मैंने भी ये सवाल राजीव से पूछा था जब ये लेके आया था. मैंने कहा फीवर क्यों है,
तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी उस समय, जो लाइन उनकी नहीं थी, उन्होंने कोट की थी कहीं से, दैट फीवर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर रेज, व्हिच इज सो ट्रू। बहुत बढ़िया। इज द एंग्स्ट विद इन। सो बेसिकली फीवर का मतलब वहाँ से शुरू हुआ था, और सिर्फ नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा था, उसके पीछे पूरा एक स्टोरी है, यू नो, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द फिल्म, बट इट इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अरबाज भाई एंड सोहेल भाई दे आर हियर। यू नो, हमारी इंडस्ट्री में वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, बट these two guys, I think, as far as I am concerned, मुझे लगता है बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं। I think it runs in their family. From the day I entered, I did my first pilot. मैं जब बॉम्बे में आया था तो मैंने अरबाज भाई के साथ में एक पायलट शूट किया था जो कभी आया नहीं बाहर। तब से लेकर आज तक, जब मेरी पहली फिल्म आमिर आई, मुझे याद है सोहेल भाई ने फ़ोन किया मुझे, मैं कहीं पर सेलिब्रेट कर रहा था, घर बुलाया, आई मेट सलीम अंकल, एंड आई एम लाइक आई वाज नोबडी, यू नो, फॉर देम, बट दे स्टिल मेड एन एफर्ट टू एटलीस्ट कॉल मी, and of course I met Salim uncle and he was equally kind. I think two very very kind people have I hear, and I think I can't ask for more. आपने तो रुला ही दिया था मुझे वहाँ बैठ के। So thank you so much. And yeah, so coming back to Fever, I hope you guys enjoyed the trailer. You know, a lot of effort has gone in, lot of people have been involved. बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ये सिर्फ जो सामने आपके आगे खड़े होकर जो बातें करेंगे वही नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम है। आपने विजुअल्स देखे होंगे, इतनी आसानी से शूट नहीं कर सकते थे इस फिल्म को। जो प्रोडक्शन टीम है, जो स्पॉट बॉयज़ हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आई थिंक अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म पुल ऑफ करना ही इम्पॉसिबल था। सो आई थिंक अ बिग थैंक्स एंड अ बिग कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड हियर वी आर। सो बहुत जल्दी ये फिल्म आपके सामने आ जाएगी, एंड लेट्स सी हाउ यू रिएक्ट टू इट। बिल्कुल गौर, ऐसी फिल्में जो फास्ट पेस की होती हैं, जहाँ पे सस्पेंस होता था, तो क्या है कहानी का, एकदम अगर वन लाइनर बोलूँ तो क्या है ये? वन लाइनर से पहले मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, बट पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप यहाँ आए। इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज अ फिल्म लाइक दिस, जैसे सोहेल ने बताया कि it really needs all your support, so thank you so much, I appreciate it. And I see the very talented Javed Jafri also with us, ladies and gentlemen. उनके लिए ज़ोरदार तालियां दे दीजिए, because thank you for your support, thank you for being here. And yeah, coming back to your question, एक लाइन में ऐसी फिल्म को आप बयां नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जैसे लिखा है बी सस्पेंस्ड, और सस्पेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स के काफ़ी शेड्स होते हैं। तो येस, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस्ड इज द राइट वर्ड फॉर फीवर इफ आई हैव टू सम इट अप। राजीव, थ्रिल एक्स, ये क्या है? एक्स थ्रिल तो समझ में आता है, Exotic? नहीं, एक्स से बहुत सारी चीजें निकल के आती एक्साइटिंग हैं, एक्साइटिंग, और भी कुछ निकलता है, एक्स फैक्टर, और भी कुछ निकलता है। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। यार आपको क्या लगा? मैं क्या बोलूं, मत बुलवाओ मेरे मुंह से यार। अब वो बाकी हम आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं, बट दीज आर द टर्म्स वी थिंक ऑफ, क्योंकि जब थ्रिल एक्स की बात हुई, जैसे राजीव बता रहे थे कि इट्स अ थ्रिलर विद एन एक्स फैक्टर। अब वो एक्सोटिक लोकेशंस हैं या एक्साइटमेंट है या यू नो जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है। एक्चुअली एक्स बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है। तो आई थिंक या दिस इज नहीं, राजीव और तीन तीन लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा। गौर, ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था? आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड आई एम डाइंग टू से दिस, क्योंकि जब मैंने इश्कज़ादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं, और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहाँ पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं। एंड थैंकफुली मुझे ऐसा एक लीड रोल मिला जहाँ पर परफॉर्मेंस करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और वो क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे। बट आई लाइक टू थैंक राजीव कि आपने मुझे ऐसा एक रोल दिया जहाँ पर एक लीड एक्ट्रेस को भी उतना ही ज़्यादा स्कोप मिल रहा है जितना कि एक लीड एक्टर को मिल रहा है टू परफॉर्म, नॉट जस्ट बी इन सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एक इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, जब लीड बोलते हैं तो लड़कियों को
जिस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं कि आपके गाने कितने हैं या आप किसके ऑपोजिट हैं, मुझे हमेशा रॉकेट सिंह के हर इंटरव्यू में पूछा जाया करता था कि आप रणबीर कपूर के ऑपोजिट हैं। मैंने कहा ऑपोजिट नहीं हूँ, लेकिन फ्रेम 1 से फ्रेम एंड तक हूँ। सो दीज आर काइंड ऑफ द बैरिकेड्स दैट आई वांटेड टू ऑलवेज ब्रेक इन माई करियर, विच अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन lucky enough that I've got those opportunities. And yes, my first lead role, I can very well say that it's given me a big scope to perform, and I'm thankful for that. Thank you so much. वेरी गुड। राजीव, वो एक्स फैक्टर के आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा। 3 हीरोइन और तुम्हारा एक्स फैक्टर मैंने देख लिया जो परफॉर्म कर रहे थे उधर। देख रहे बेटा, हमने देखा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप। कैसा महसूस किया? उन्होंने या मैंने? अब तुम सामने हो तो तुमसे ही पूछ लेता हूँ। बुखार चढ़ गया था। या टोटली, आई मीन कमाल के हैं। आई मीन द स्क्रिप्ट फॉर मी, आई मीन जिसके बारे में बात करो, जो इंटीमेसी है, जो इंटीमेट मोमेंट्स हम लोगों को देखे हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं डाले गए हैं। पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन है। हमने पहले दिन से ही हमें मालूम था कि किस बारे में फिल्म है। इनफैक्ट कभी ध्यान गया ही नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं राजीव से, इसलिए नहीं कि वो लड़कियाँ बहुत हॉट हैं, इसलिए कि मुझे लगा ही नहीं कि इस तरह के सीक्वेंसेस हैं जो मतलब ज़बरदस्ती हैं या क्यों हैं यहाँ पे। I think all these sequences that you saw, you know, is a very important part of storytelling. And yeah, Rajiv wants to add. एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको कई बार बताया नहीं था कि अभी ये वाला सीन भी है। हाँ, एक्चुअली जो जेमा के साथ में पहले, मतलब वो उस टाइम पे नहीं था, बिकॉज द फिल्म की जो एडिट पैटर्न है वो आगे पीछे था, तो हम लोग शूट भी ऐसे कर रहे थे इसके अंदर। और एक जगह हम लोग कहीं, और जेमा से मैं पहली बार मिला था, एंड जेमा के बारे में ऑफकोर्स सब जानते थे, हम सब मालूम। पहली बार मिलने पर ही परफॉर्मेंस मेरे हाथ पर ठंडे पड़ गए थे जब राजी ने बोला कि अच्छा ये सड़क के बीच में खड़े हैं ना राजी, ना वी नीड अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग किस। सो आई रिमेंबर, या सो इट वाज, एंड ऑन हर पार्ट, मतलब वो जेमा, आई मीन दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, आई थिंक ब्रिलियंट एटीट्यूड उनका होता है, एंड शी, आई थिंक शी मेड मी कंफर्टेबल, जबकि उल्टा होना चाहिए, शी रियली मेड मी कंफर्टेबल। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द फिल्म मैं प्रो हो गया। Yeah, I think Gaur also has something interesting. Also परफॉर्मेंस की दाद देनी चाहिए कि इन्हें तीनों लड़कियों के साथ अलग परफॉर्मेंस देनी थी। So I'm sure Rajiv, you will get an award for that कि तो तीनों डिफरेंट इमोशंस कैसे होते हैं वो आप मूवी में तो देखेंगे। सर प्लीज सर एक्सप्लेन कीजिए उसको। और प्रोड्यूसर सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस फिल्म में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तो लास्ट जो चेक बाकी है उसको थोड़ा सा। क्या चीज़? अनुराग, मुझे लगा था कि ये सारे जो सवाल होते हैं जो दे पुश यू टू द कॉर्नर, इज डन वेरी वेल बाय द प्रेस। आप तो हमें वो स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं। यू आर आस्किंग अस एवरीथिंग पॉसिबल। नहीं, पर इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उनको मौका न दो ना यार, जो है यहीं निपटा लेते हैं ना हम लोग यार। क्यों? नहीं, अभी तो ग्रिलिंग सेशन शुरू होगा, मुझे मालूम है, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद में आपको ऐसा कहीं नहीं लगा होगा दैट द फिल्म इज actually I mean these moments are dominating this trailer because फिल्म की स्टोरी इतनी कड़क है कि आप एक बार भी नहीं आपको लगेगा कि ज़बरदस्ती डाल। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एंड आई होप यू ऑल्सो फाइंड इट इक्वली इंटरेस्टिंग। देखो यार, पूछने को तो मैं पूरी रात पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन क्या है, फीवर से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग भी अगर कोई पूछना चाहें। यहीं बैठी है, ये सवाल मत पूछो, बाद में बताऊंगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेरी बीवी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पे। तो खास वजह ये कि ये स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए होगा, देयर समथिंग। और बाकी सारी जो टिपिकल फिल्में हैं, मुझसे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग कर रहे हैं, तो एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा से, और मुझे लगता है कि मैं आई विल बी 100% इन देयर। और कभी डेलिबरेटली नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस तरह की फिल्में करूँगा, बट जब स्क्रिप्ट आती हैं तो पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्में आर द फिल्म दैट रियली एक्साइट मी। सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई थिंक शुड नॉट बी। जी मैं प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, मैं मीडियम को नहीं देखता हूँ। मुझे अगर प्रोजेक्ट एक्साइट करता है तो मैं वो प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो फिल्म्स हो। थिएटर में कुछ एक्साइट करेगा तो मैं वो भी करूँगा, बट आई थिंक मोस्टली आई पिक अप प्रोजेक्ट्स विच रियली एक्साइट मी। आई डोंट रियली लुक एट द मीडियम। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने जो जितना भी काम किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, इट्स हाउ मच यू रीच आउट टू पीपल। हमें कोई डर नहीं है, उन्होंने सब काम कर दिया हमारे लिए।
He never kept me in suspense that way, by the way, you know. Yeah. But while shooting, I wasn't prepared for that sequence to come all of a sudden, you know, and that, I think on day one. So we knew it, and he had a certain pattern of shooting the film. So I wasn't really prepared for it then, but he never kept us under suspense. Or No, actually, add to that, and I don't want this mic. Thanks. I'd like to add to that कि जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी RJ, I call him RJ क्योंकि सेट पे बड़ी confusion होती थी Rajiv, so I used to call him RJ. So RJ in the first meeting itself had told me कि देखो ये scene है exactly script से एक लाइन ज़्यादा नहीं, एक लाइन कम नहीं. ये रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा आई विल नॉट बी एबल टू कास्ट, सो यू हैव टू बी कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद दैट. एंड जैसे राजीव ने बताया कि फिल्म में ऐसा कोई भी एक भी आपको ऐसा सीन नज़र नहीं आएगा जो ज़बरदस्ती हाँ इफेक्ट के लिए डाल दिया गया हो. इट मेक्स सेंस टूवर्ड्स द एंड ऑल्सो, राइट एट द बिगिनिंग ऑल्सो यू विल से अच्छा दैट इज़ वाई दिस हैपेंड. इनफैक्ट माई मॉम इज सिटिंग राइट हियर एंड जब मैंने स्क्रिप्ट नरेशन हुआ था मेरा, आई वेंट होम एंड आई टोल्ड मॉम, यू नो फाइनली एज एन एक्टर्स यू नो करियर में वो मौका आ गया. ने इट मेक्स सेंस एंड इट्स ओके विद यू टू परफॉर्म, देन यू गो हेड एंड डू इट. हिम्मत नहीं बन रही थी टू सिट नेक्स्ट टू हर एंड वॉच इट, सो आई वेंट राइट एट द बैक टू वॉच द ट्रेलर, बट शी इज स्माइलिंग, सो आई एम गेसिंग इट्स ओके. Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and I approached Katrina, there is a very, like a detailed clarity when you speak to them. Like every moment is explained in the script. And they understand it and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety. And then they perform. So that's the clarity of that, why are we doing what we are doing. And maybe which also Rajiv will kind of back me on that, is that they are so... you know, unself-conscious, there's a word, of so kind of selfless when they're performing, or when that thing is going to happen, that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene. Right? So it was, and similarly with Gauhar, but also the point is that sometimes you don't need to say it. Like I remember this one particular scene, I will not go into detail, when Gauhar is there and, yeah. So I had to, in between the take, because obviously I would have music on, that kind of a thing. I just in between said, just go ahead, just you know. But she trusts the script, so she goes ahead. You know, so that's the kind of trust that you have to have in the script and the person who's directing the film. Then it just becomes a part of the story. It doesn't kind of stand out as a sexual object, if I can call that. Yeah. Thank you for asking. I think, yeah, that would is a kind of a thing that comes from the trailer. No, can I say that with a lot of humbleness, that this is a complete original script, and that's why I had to really work hard, because it's a difficult script to kind of comprehend and initially, but visually kind of it translates much easier. But no, it is not. It's completely original, and I had to keep that in mind because I was approaching people who are part of different Hollywood and European industry, and I don't want to cut us off. And also Switzerland. The entire film is backed by the Swiss government, the canton of Valais, which is entirely to shot, and for the first time, perhaps after Yash Ji has kind of patented Switzerland, you know, for me to go again to Switzerland and get the backing from them to get the kind of visuals that I wanted to was a big thing for me. So the originality was very, very important, because I cannot go to any international actor saying, look honey, this is a, you know, kind of a inspired script. So it is completely original. और दूसरी बात ये कि स्विट्जरलैंड में गए नहीं हैं, ये पूरी कहानी स्विट्जरलैंड की ही है. तो मतलब ये नहीं कि चलो यार 2 गाने के लिए स्विट्जरलैंड होके आते हैं. Yeah, ऐसा कुछ नहीं है. पूरी कहानी, पूरी स्टार कास्ट वहीं पर रहती है, वहीं सब है, इसलिए आई थिंक बहुत अच्छा विजुअल है. Correct. So there are characters who are Indians who live in Switzerland with Mr. Modi, whatever kind of, you know, backing expatriates. So it is, these people live in Switzerland, and it's a story about Indians living in Switzerland. So nobody's kind of gone there to do a particular thing. छुट्टी पे चले जाता हूँ. ये बहुत छुट्टी पे जाते हैं. मुझे लगता है मेरी लाइफ सिर्फ यही नहीं है. मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उतना एंजॉय करता हूँ जितना मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ. बट 100% वर्क मेरी लाइफ में नहीं है. यू नो, देयर आर कंपार्टमेंट्स इन माई लाइफ.
तो मुझे लगता है जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे, और बीच में ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट्स आती हैं बीच में एक्साइट नहीं करती, कभी कभी आप काम करते हो वर्कआउट नहीं हो पाती हैं, लॉट ऑफ रीजंस, मतलब सो बट देन मैं सिर्फ करने के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं वेट करना प्रेफर करता हूँ, बट सिर्फ करने के लिए कुछ भी कर लो तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं जब नहीं कुछ करता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस समय गायब हो जाऊँगा, नज़रों से गायब हो जाऊँगा तो क्या होगा। इट डजंट रियली बॉदर मी। आई जब मैं नहीं दिखता हूँ आप तो सोच लिया करेंगे कहीं ना कहीं गोवा में घूम रहा होगा, लद्दाख में घूम रहा होगा, या कहीं अब्रॉड घूम रहा होगा। और कोई? नहीं नहीं, मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अपने तरीके से चलता हूँ, वो ऑफकोर्स बहुत बड़े एक्टर हैं और उन अब जहाँ तक पहुँच गए हैं वो, आई थिंक वो उतना ही अफोर्ड भी कर पाते होंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आप दोनों को। कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है? एनीवन? और किसी के पास कोई सब्जेक्ट, कोई बात? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो सब पूछ लेंगे यहाँ पे, सब फैमिली वाले ही हैं और क्या, सब मीडिया वाले हैं सब यहाँ पे। ओके राजू, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए ऐसी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं, जो थ्रिल होते हैं, स्पेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? और दूसरी फिल्म साइन करने के पहले आपने बोला कि मैंने डायरेक्टर से बात की थी, तो एग्जैक्टली अगर 3 रीज़न बताएं कि फिल्म देखने के बाद क्या महसूस करेगी इंडियन पब्लिक? नहीं, सबसे पहले तो बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे ना आप। इस तरह की, मैं भी इस बात को काफ़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग आपने नहीं देखी होगी। दैट वाज वन रीज़न जो मैंने भी इस फिल्म को साइन किया था। दूसरी चीज़, आई थिंक जिस तरह से ये फिल्म शूट भी की गई है, विजुअली बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। मुजाहिद हमारे जो डीओपी हैं यहीं बैठे हैं कहीं पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। एंड थर्ड थिंग, आई थिंक परफॉर्मेंसेज। सो इट्स नॉट दैट कि मैं लीड एक्टर हूँ, आई थिंक वी ऑल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड सो देर आर 4 कैरेक्टर्स इन द फिल्म एंड इट्स जस्ट दैट कि इर्द गिर्द हम के घूमती है कहानी, तो लगता है कि मैं लीडिंग मैन हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड वंडरफुल। यू विल सी एक्चुअली कि एक इटालियन एक्ट्रेस हैं, एक ब्रिटिश लड़की हैं और हम लोग इंडिया से हैं, बट एट नो पॉइंट विल यू फील दैट बैरियर। आपको कहीं नहीं लगेगा कि यार ये बाहर की एक्ट्रेस आई हुई है। इट जस्ट वेरी सीमलेसली फॉल्स इन प्लेस एंड सो आई थिंक ओवरऑल द पैकेज विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, आपने अभी तो गाने सिर्फ एक ही सुना है, काफ़ी गाने हैं फिल्म के अंदर। या जो आपने गाना सुना अच्छा लगा ना, द लव सॉन्ग, टोनी कक्कर इज सिटिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। टोनी कक्कर ने गाया है, उन्होंने कंपोज किया है, एक बार उनके लिए तालियां। टोनी प्लीज खड़े हो I यार। think that song's going to do wonderful, Tony. I'm sure the song's going to do wonderful. That's a beautiful song. 3 things that people will take home. One, I think they will go very heavy on emotions, क्योंकि ये फिल्म में एक काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम श्योर after the climax people will take back some kind of an emotion with them for sure. Dusra, performances, like Rajiv said, everyone's done brilliantly, and good music. The music is very 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 good. We have a song by Arijit, right, and yeah, Sharmali, so a great soundtrack as well. Yeah, चलिए, आई थिंक बेस्ट ऑफ लक, जोरदार ताली होनी चाहिए स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं चाहूँगा जितने फोटोग्राफर हैं, ओहो क्या बात है। अरबाज भाई, सोहेल भाई, 1 मिनट प्लीज स्टेज में आते हैं। जावेद सर, जावेद भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। can we also have the producers here? Yeah, can we have Manju ji? By the way, the producers have been like really a backbone. ये फोटो हो जाती है उसके बाद। अच्छा, एक 2 okay, सेकंड, okay. 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। Okay, all producers please come on the stage. DOP
डीओपी मंजू जी, करण 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 देवगन, या दी यादव, हमारी फिल्म के खड़े होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है इन लोगों का। अरबाज भाई, सोहेल भाई एंड जावेद सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। टोनी टोनी प्लीज कम हियर। रवि जी आगे, सब आगे, ओके एवरीवन इज हियर। अज्जू इज हियर, अज्जू, अरे अज्जू प्लीज। only Starcast. Only Starcast. थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thanks a lot. Thank you for coming. How are you? किरदार के बारे में बहुत सारा नहीं बता सकती क्योंकि जैसे ये एक थ्रिलर और एक सस्पेंस फिल्म है तो उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये एक लव स्टोरी है और जो ये कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी एलिमेंट्स हैं इसमें परफॉर्म करने लायक, तो क्या किरदार है वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बट ये कह सकती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, अपना दिमाग जानती है और क्या कर रही है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। This is your first movie and you're playing a lead role. दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट मूवी एज अ लीड रोल, या This is so how much you excited and how much you're nervous to play this? नर्वस तो अभी नर्वसनेस ख़त्म हो चुकी है क्योंकि शूटिंग हो गई और काफ़ी अच्छी हुई है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एक लीड अवतार में लोग देखेंगे जहाँ पर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि सिर्फ गानों का हिस्सा या सिर्फ किसी के एक फ़िल्म का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि एक परफॉर्मेंस करने का काफ़ी स्कोप मिला है, काफ़ी एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर डायरेक्टर ने बहुत ही, बिकॉज वो राइटर भी हैं तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर लिखा है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप दैट इंशाल्लाह लोग जाएं और ये मूवी देखें। चैलेंजिंग काफ़ी था क्योंकि क्यों चैलेंजिंग था वो बता दूंगी तो फिर सस्पेंस खुल जाएगा तो चैलेंजिंग काफ़ी था। एक आई वुड से कि आजकल थैंकफुली लड़कियों के लिए रोल्स अच्छे लिखे जा रहे हैं, ऐसे रोल्स लिखे जा रहे हैं एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा रोल मिला है करने के लिए। तो चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन होपफुली मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने अच्छा किया है, सो आई एम एक्साइटेड। बट सेम टाइम लाइक हम अगर आपके रोल की बात करें, हर रोल में बहुत प्रिपरेशन करता है जी। प्रिपरेशन यस, प्रेपरेशन ऑफ कोर्स काफ़ी थी क्योंकि इस मूवी में अगर आप देखेंगे, ये पोस्टर में दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन आई हैव अ मोनरो मेरे कैरेक्टर में एक मोनरो है जो मैंने पूरे फिल्म में पहना है, तो उसको मेंटेन करना और उसके साथ टू हैव एन एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास और कोई पियर्सिंग है नहीं और आज तक कभी भी आई थिंक बॉलीवुड में कोई एक फीमेल कैरेक्टर नहीं है जिसने मोनरो पहना हो एज अ कैरेक्टर, तो उसको काफ़ी हमने वर्क किया है। और जैसे मैंने कहा, इस लड़की के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सबको निभाने में
काफ़ी प्रेपरेशन। How was the experience to work with a Hollywood actor? वेरी गुड। जेमा एंड कैटरीना बोथ ऑफ देम, जैसे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और उन्हें पता होता है कि काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती। तो हमने काफ़ी मस्ती भी की और दोनों ही लड़कियाँ इतनी स्वीट हैं। वी गॉट लॉन्ग लाइक हाउस एंड फायर। सारे ही टीम, राजीव, मैं और दोनों लड़कियाँ एंड जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो भी। इट वॉज़ अ ग्रेट टीम ऑल टुगेदर एंड हमने मोर देन 1 महीना स्विट्ज़रलैंड में बिताया। तो द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल, वी हैड एक्सट्रीम, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में हैं, कि वाह ऐसी भी एक फिल्म शूट हो रही है जहाँ पर हम सिर्फ एक गाने के लिए नहीं जा रहे बल्कि पूरी फिल्म ही हमने वहाँ शूट की है। और अगर आपके बोल्ड सीन्स की बात करें तो आपने कहा कि मैं पीछे बैठ कर देख रही थी, लेकिन मॉम के साथ देख रही। तो जब आपको फिल्म के लिए बुलाया गया, अप्रोच किया गया, तो क्या रिएक्शन था आपका? कितना मुश्किल रहा और कितना चैलेंजिंग रहा? अगर See, coming from a regular middle class family, of course, it takes a lot of preparation आपके दिमाग में कि आप करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी और क्यों करना चाहेंगी। एज एन एक्टर आई हैव बिन ट्रेन्ड इनफ टू नो कि आपको अपने इनिबिशंस छोड़ने पड़ते हैं टू परफॉर्म अ कैरेक्टर। थैंकफुली मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट है जहाँ पर वो समझते हैं कि एक एक्टर की ज़िंदगी क्या होती है। और मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ इससे मैं पॉपुलर हो जाऊँगी तो शायद मुझे कर लेना चाहिए, या हाँ ये फिल्म में है 2 गाने हैं तो चलो बोल्ड सीन चलेगा। बट इस फिल्म की रिक्वायरमेंट वो थी, स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई थी कि वो क्यों कर रही है उसका भी एक रीज़न है। ये कैरेक्टर अगर एक गाने में एक ब्यूटीफुल किस है तो वो क्यों है उसका भी एक रीज़न है। इट्स नॉट जस्ट रैंडमली हैपनिंग for any of the scenes in the film. So as an actor you have to be absolutely sure what you're doing. नहीं, ये पहली फिल्म है जहाँ पर गौहर खान डांस नहीं कर रही है। Yeah, actually I'm not dancing in this film. नहीं, मैंने मिस नहीं किया क्योंकि in this film I get to play a beautiful role. So yes, for the first time in this film I'm not dancing. गौर अगर फिल्म में अगर बात करिए तो क्या सोचा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट किया आपको किरदार में कि हाँ यार ये फिल्म ये रोल मुझे करना चाहिए? आपको मेरे किरदार के बारे में बहुत कुछ जानना है ना, जब मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ तो क्या अट्रैक्ट किया हाँ यार ये वाला करना है, वही तो नहीं बता सकती कि क्या अट्रैक्ट किया। अगर बता दूंगी तो फिर देयर इज नो फन इन इट, बट आई कैन से दैट ये लड़की इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, जो जैसे मेरी असलियत भी है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी है, वो नाइव भी है, वो प्यार में भी है। वो क्यों है, कैसे है, वो सब आपको फिल्म में पता चलेगा। थैंक यू। डन? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। में एक असैसिन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का है, जिसकी एक अलग दुनिया है, जो एक अलग किस्म से अपनी लाइफ जीता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो एक्सीडेंट क्यों होता है वो सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा। और उसके बाद जब वो उठता है तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता है। उसे ये भी मालूम होता है कि वो बहुत सही काम नहीं करता, कुछ उसने गलत किया ज़िंदगी के अंदर, और तब उसका पास्ट उससे आके मिलने लगता है। कुछ लोग जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे वो आने लगते हैं। अब उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर की लाइफ में किस तरह के लोग होंगे, और वो अपने आप को तलाश रहा है लेकिन उसका पास उसके साथ में कैचअप कर रहा है, और किस तरह से फिर स्टोरी आगे बढ़ती जाती है एंड एक पॉइंट पर आके अनवेल होता है। तो ये इस तरह की एक थ्रिलर है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी कि बी सस्पेंस्ड अंग्रेज़ी का वर्ड नहीं है बट फिर भी यूज़ किया गया। तो प्लीज़ बी सस्पेंस्ड टिल द टाइम यू डोंट सी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग 2016 में बैठे हैं जहाँ पर किसिंग सीन देखने से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, कोई स्कैंडल नहीं होता। अब चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो हम छोटे शहर में भी चले जाएँ, तो आई डोंट थिंक किसिंग बड़ी बात रहेगी। तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा चर्चा करना बनता भी नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म में वैसे भी किसिंग है नहीं, मतलब सॉरी किसिंग है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रॉन्ची नहीं नज़र आएगा। जैसे कि मैं किसी से कह रहा था कि ये फिल्म किसिंग इसलिए दिखाई गई ट्रेलर के अंदर बिकॉज वो एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, बट
हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किसिंग की वजह से कोई फिल्म देखने के लिए आएगा। वो जानते हैं कि मैं किस तरह का काम करता हूँ, जो मेरी ऑडियंस है वो जानते हैं कि मैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म में काम करता हूँ। और अगर ये माध्यम होता या ये एक ज़रिया होता अपनी फिल्म को बेचने का, तो अभी तक बहुत कहानियाँ सुन ली होती है आपने कि राजीव और बॉन्ड गर्ल का ये अफेयर, जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये वहाँ गए और यहाँ पे ये स्कैंडल हो गया, राजीव और गौहर के साथ में ये हुआ। तो ऐसी कहानियाँ हमने कहीं ना तो हमने दी। मैं आज भी कहता हूँ कि हमारा किसी का कोई अफेयर नहीं हुआ, इससे पहले की कहानियाँ कोई लीक करे कि अच्छा ये हुआ था। हम वो उस ज़रिए जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और बड़े खुश हैं कि हम आज भी साथ हैं, सबके सब सारी कास्ट एंड सारी क्रू, एंड वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये किरदार करना, कॉन्टैक्ट करना, क्या-क्या काम करना पड़ा आपको इसमें? बहुत इजी नहीं था ये रोल मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं, आप देखेंगे। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर राजीव ज़वेरी जो हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो बहुत क्लियर थे कि उन्हें किस तरह का कैरेक्टर चाहिए। हमारी मेहनत एक तो परफॉर्मेंस लेवल पे थी, और दूसरी मेहनत हमारी थी लोकेशंस पे। हमने 3 सीज़न में फिल्म शूट की है स्विट्ज़रलैंड में। ये पहली फिल्म है शायद जो पूरी इंडोर आउटडोर पूरी स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है। मतलब एक पैच वर्क भी यहाँ बॉम्बे में आगे नहीं किया गया। सारे गाने जितने भी हैं सब कुछ स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। और अलग अलग सीजन्स में रात के 1 बजे जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो, आपको बर्फ़ में आप कंटिन्यूटी में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने एक शर्ट पहनी थी दोपहर में, और आपका सीन 2 बजे शूट हो रहा है, तो वो एक अलग चैलेंजेस थे। जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पर वैनिटी वैन्स नहीं पहुँच सकती थी, खाना भी हम सड़क पे खाना पड़ता था। तो हम लोग सब एक शेड ढूंढते थे कि कहाँ पे थोड़ा सा इनक्लोज जगह जहाँ पे खाना खा सकें। ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं था। गौहर को बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस है उनको। वो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ गोल गोल घूमती हैं तो उन्हें शी फील सिक। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि वो आगे बैठ के जाती थी। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी, एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर, जिसके अंदर 2 अलग अलग आप देखेंगे। मतलब तो या इट वॉजंट ईजी, बट हर एक्टर कहेगा कि मेरा परफॉर्म करना इजी नहीं था, मैंने फिर भी कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। 3 एक्ट्रेस हैं फिल्म में और मेन लीड आप कर रहे हैं, तो फिर तीनों के साथ रोमांस भी काफ़ी है आपका। आपकी वाइफ से कुछ प्रॉब्लम? मैं समझ नहीं, अभी भी ये 2016 में सवाल पूछे। मेरी वाइफ भी 2016 की है, मतलब आज के ज़माने की लड़की है। बहुत इवॉल्व है, बहुत सुलझी हुई है। उन्हें आज तक कभी इन चीज़ों से परेशानी नहीं होती। जैसे मुझे परेशानी नहीं होती, मैं किसी को देखता हूँ तो मैं जजमेंट नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म को देखने के लिए जाता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ किसिंग थी। तो ये मुझे लगता है इस बारे में चर्चा हमें धीरे धीरे करके ख़त्म कर देनी चाहिए। मीडिया वाले हैं जो कभी कभी बढ़ा देते हैं किसिंग को, सेक्स वाले सीन को। आई थिंक हम बात करना बंद करेंगे तो हमारे देश की मेंटालिटी भी वैसी होती जाएगी कि हाँ है ना किसिंग, तो क्या बड़ी बात है। फिल्म में कॉन्टेंट क्या है वो बताओ। ब्रेक इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। अभी सिर्फ मैं दिखता रहूँ हर वक्त, एक साल में 5 फिल्में करूँ, बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये सब मुझे एक्साइट नहीं करता। ये गलत भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। कुछ लोगों की, हर आदमी हर एक्टर अपने हिसाब से सोचता है। मैं जैसा इंसान हूँ, मैं जैसा ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे ये सूट करता है कि मैं वो फिल्म करूँ जो मुझे एक्साइट करती है। तब मुझे काम करने में भी मज़ा आता है, मुझे सेट जाने में भी मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो 6 महीने के बाद आप शुरू करते हो तो आपको लगता है आप न्यू कमर हो, बिल्कुल आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही आपको जानता है। तो एक अलग किस्म का पैशन भी बनता है जो मुझे सूट करता है। और मुझे इस बात से बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती कि मैं गायब हो रहा हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं गायब होता जा रहा हूँ, और दिखना चाहिए मुझे। मैंने आज तक कभी कोई आप मेरे बारे में ज़रा पढ़ते भी नहीं होंगे। मैं ज़रा सोशल ऑनलाइन मीडिया में भी ज़रा एक्टिव नहीं हूँ। अब मुझे लगता है कि काम अच्छा करो। तो अब ज़माना भी बदलता जा रहा है, लोग फिल्में देखने आने लगे हैं। अभी हम पास्ट में देख चुके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं चल रही हैं। लोग पीपल रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पीपल वांट कंटेंट, आई थिंक। तो अगर आप काम ऑनेस्टी के साथ में करेंगे तो देयर इज़ ऑलवेज एन ऑडियंस, और अगर फिल्म रिलीज़ ढंग से हो, आज की तारीख में एक्चुअली कंटेंट से भी ज़्यादा हो गया कि आपकी फिल्म रिलीज़ ढंग से हो। मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं, काफ़ी रिलेट करते हैं, मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें दफना देता हूँ। जो मैंने पास्ट में किया है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, सब कुछ दफना देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कोशिश नहीं करता कि कोई सीज़न 2 या सीज़न 3 आए, बट सच का सामना एक ऐसा शो है जिसका सीज़न हमें ऐसा लगा था कि हमने थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे अगर अप्रोच करेंगे तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। हो सकता है मैं कर भी दूँ, बट अभी तक ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे पास में कोई नहीं आया है, ना तो प्रोडक्शन हाउस ना चैनल। सच का सामना को लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसका क्या हो रहा है। बट उसके बाद अलग जो शोज़ हैं, मैं शायद अपने शोज़ जो मैं कर चुका हूँ उन्हें रिपीट नहीं करूँगा। उसका कभी सीज़न 2 या सीज़न 3 नहीं करूँगा, बिकॉज वो देख चुके हैं, वो मैं कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो which kind of movie you like, person like जैसे कि आप
आपने रोमांटिक या साउंड ट्रैक जैसे मूवी के अंदर इट्स पर्सन व्हिच काइंड ऑफ मूवी यू लाइक? बड़े आई नो बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह की फिल्में मैं पसंद करता हूँ करना। मैं हमेशा अपनी स्लेट खुली रखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये सब आमिर होने के बाद में आमिर करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम अपनी सोच को ऊपर लिमिटेड कर देते हैं। अगर हम सोचें कि यार मुझे ना एक रोमांटिक फिल्म करनी है जिसमें गाने हो, जिसमें ये हो, क्योंकि जब आमिर आई थी तब मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की कोई स्क्रिप्ट होगी। जब टेबल नंबर 21 आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी। या शैतान जब आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी। तो अब बेस्ट मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं ब्लैंक रखता हूँ अपनी प्लेट, दिमाग भी अपना ब्लैंक रखता हूँ। जब क्योंकि कभी कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको लगता है अरे यार ऐसा भी कोई लिख सकता है। जैसे ये फिल्म है फीवर, जब पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे किसी ने सोच दिया। तो ऐसी फिल्मों में काम करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। आपको पता भी नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ऑडियंस सोचेगी, क्या जैसे हम पढ़ रहे हैं क्या वो ट्रांसलेट होगी स्क्रीन पे। और जब वो हो जाता है तो इस तरह की एक्साइटमेंट होती है जो आप अभी देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि आपने एक अटैम्प्ट किया और वो सक्सेसफुल बना। राजीव, आपने जैसे अभी क्या इसी में कि अरबाज खान के साथ आपने कोई पायलट शूट किया था, वो थोड़ा क्या था सीक्रेटली बताएं? जब मैं मुंबई में आया था 2002 में, तब मैंने एक पायलट शूट किया था टीवी के लिए, जिसमें मैं और अरबाज एक सीज़न कर रहे थे हम लोग। मैं नाम नहीं लूँगा बट एक सीज़न कर रहे थे, जिसका भी चल भी रहा है कोई सीज़न। तो हमने एक पायलट शूट किया था। मेरे ख्याल से पहले एक्टर थे जिनके साथ में, वो उस टाइम आपको सीनियर हैं, मेरे आज भी हैं, तब भी मेरे सीनियर थे। तो हमने काम किया था। तब भी मुझे याद है कि जब 2002 में किया था उन्होंने, तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल दिल्ली से आया हुआ लड़का था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया उस टाइम पे। ऑफकोर्स वो कभी शेप अप नहीं हुआ, कभी टेलीविज़न पे हमने उसकी सीरीज़ नहीं कर पाए। तब से लेकर आज तक एक रिश्ता सा बना हुआ है उनके साथ में। आई थिंक द होल फैमिली इज़ वेरी गिविंग, नॉट जस्ट टू मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आई थिंक ये लोग सबके लिए बहुत करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत काइंड किस्म के लोग हैं। बहुत कन्नाइविंग नहीं है, बहुत स्कीमिंग नहीं है, दिल के हैं आई थिंक। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आज अरबाज और सोहेल भाई आए, जावेद जाफरी आए। दे आर ऑल लाइक क्लोज फ्रेंड्स। वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि ट्रेलर लॉन्च है तो चलो एक्टर्स होने चाहिए। इसके पीछे हिस्ट्री है कि ये सब लोग यहाँ पर क्यों थे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप सबको फिल्म पसंद आए।